Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable President, may I have your permission to start the formal proceedings of this special investor ceremony for conferment of Nishan-e-Imtiaz military upon General Lee Chao-ming, Commander People Liberation Army Ground Forces, People's Republic of China. Now I invite Mr. Ahsanullah Kakar for recitation from Holy Quran. I now request General Lee Chao-ming, Commander, People Liberation Army Ground Forces, People's Republic of China, to please come forward. Ladies and gentlemen, General Lee Chao-ming has distinguished himself as an officer of exceptional leadership, selfless dedication to service, and outstanding professional ability. During a career spanning over 4 decades, he has contributed greatly to the Chinese military through his diligence, determination, and efficiency. His steadfast loyalty, outstanding leadership, initiative, and vision brought him wide acclaim and inspired others to strive for maximum achievement. Ladies and gentlemen, during his decades-long service to the nation, General Lee Chao-ming has been known for his extraordinary professionalism, outstanding command skills, and concerted efforts for supporting and implementing peace and stability around China and in the world. As a friend of Pakistan, General Lee Chao-ming has made immense contribution to Pakistan-China military relations with unwavering commitment and dedication, which have been instrumental factors in advancement of military cooperation between the two friendly nations. His professional skills, knowledge, and leadership reflect great credit upon himself, his military, his nation, and humanity at large. Ladies and gentlemen, in recognition of his meritorious services rendered towards enhancing defense cooperation with Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz military upon General Lee Chao-ming, Commander, People Liberation Army, Ground Forces, People's Republic of China. Now I request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiaz military from the President of the Islamic Republic of Pakistan. Honorable President, may I have your permission to close the formal proceedings of this special investor ceremony? Ladies and gentlemen, the proceedings of this special investor ceremony are now closed. Guests are invited for refreshment. Thank you very much. ऐवान सदर के मनाजिर आपने देखे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली चाओमिंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया है। ऐवान सदर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब बराह रास्त आपने मुलाहिज़ा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एजाज़ देने की तकरीब में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली चाओमिंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कल बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को बसों से उतारकर कत्ल किया है। अब दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान के जो माली और मादी वसाइल दरकार हैं उन्हें मुहैया करेंगे। ये भी कहा कि फ़ौज के सिपहसालार का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं, बजाय कि मैं इस बात पे जाऊँ कि पाकिस्तान के किस हिस्से के लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया गया, अगर ये कहा जाए कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्की सालमियत के हवाले से एक ज़्यादा मुनासिब और मौसर बात होगी। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से फ़ाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए, इंशाअल्लाह वो हम अपना तमाम बाकी अखराजात कम करके इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे। जो सिपह सलार हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, उनकी एक अनवेवरिंग रिजॉल्व है कि इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। और बलूचिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बलूचिस्तान के दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है, इनके खिलाफ किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को आने वाले दिनों में सख्त पैगाम मिल जाएगा। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी में साइंस करने की जरूरत नहीं है। के पूरे बलूचिस्तान को उन्होंने यरगमान बनाया और आप कह रहे हैं सिर्फ एक SHO की मार है। ये तो ऐसा लग रहा है कि वेब सीरीज बयान है। फैसले क्या हुए बलूचिस्तान में, अभी आप लोग मीटिंग की क्या फैसले कर रहे हैं? ऑपरेशन तो पहले से भी जारी है, मजीद कैसे क्या नए तरीके से? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं जो SHO वाली बात भी मैं कर रहा हूँ वो भी क्लेरिफाई कर दूँ। ये मैं आपको एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई वो नहीं कि SHO खाली ऑपरेशन करेगा। मुहावरतन मैंने आपको ये बात की है। फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर CM बलूचिस्तान की बैक पे खड़े हुए हैं। जो ये फ़ैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे, हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला या वजाहत आने तक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़िरे इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का फैसला करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया है। PTI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले अपने दायरे इख्तियार का फैसला करे। समाअत के दौरान DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये पूछा है कि 41 MNAs की PTI में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम करें, जिस पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आपने जिन 39 अरकान को PTI का तस्लीम किया, उन्हें भी सर्टिफिकेट खुद उन्होंने ही जारी किए हैं। इस मौके पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर के दस्तखत की वजह से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी है, जारी प्रोसेस के दौरान कानून नहीं बदला जा सकता। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेगी। निशान जो भी हमें मिलेगा, लोग खान साहब के नज़रिए के साथ है। खान साहब अब किसी निशान के मोहताज नहीं है कि इस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि जब एक प्रोसेस शुरू हो जाए तो फिर कानून साजी में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। लेकिन एनीवे हुकूमत ने किया है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इलेक्शन डिले नहीं होंगे। कोशिश हुकूमत कर रही है, क्योंकि इनको मालूम है इनको कोई लोगों ने तो इलेक्ट करना नहीं है, पहले से फॉर्म 47 की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा है कि हक दो तहरीक आगे बढ़ रही है। कल तारीखी हड़ताल होगी। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि महंगाई, टैक्सेस और बिजली की कीमत ने तिजारत, सनत और आम फर्द समेत सबको बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त हैं और बिजली का जो शदीद बहरान है, इस बहरान ने पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान के आम फर्द सबको बर्बाद करके रख दिया है। फिर जो ताजिर दोस्त के नाम से ताजिर दुश्मन स्कीमें हुकूमत मुतारिफ करवा रही है, जालिमाना टैक्स का निज़ाम लगा रही है। टैक्स देने पर किसी को एतराज़ नहीं है और जो मुनासिब टैक्स है वो लगना चाहिए, लेकिन इस तरह की स्कीमें जो मार्केटों को आइडेंटिफाई करें, किसी को 60,000, किसी को 40,000, किसी को 30,000 माहाना, चाहे उसका कारोबार जैसा भी हो, अदायगी करनी पड़े, तो ये टैक्स तो कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा हमारी ये तहरीक हक दो अवाम को तहरीक आगे बढ़ रही है और कल 28 अगस्त को बरोज़ बुध तारीखी हड़ताल होगी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कल मुल्क भर में होने वाली हड़ताल की हिमायत कर दी है। अपने बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने आवाम का जीना दुभर कर दिया है। IMF के हुक्म पर बने बजट ने आवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है। ताजरों की कल की हड़ताल की कॉल की हिमायत करते हैं।